یا اللہ یہ تیری مسجد میں بھی جنرل سیل ٹیکس لگاتے ہیں، یا اللہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ تیری مخلوق کے ساتھ تو ظلم کر رہے ہیں، جو تیری عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تیرے گھر کو بھی نہیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما، ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا، یا اللہ تو ان کے اوپر عذاب نازل کر، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ تیرے گھر کے ساتھ بھی یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ظلم کی انتہا ہے کہ ان کی بجلی مفت، ان کا گیس مفت، ان کی پانی مفت، ان کی ہر چیز مفت۔ یا اللہ تیری مخلوق کو بھی مفت نہیں دے رہے اور تیرے گھر کو بھی مفت نہیں دے رہے، یا اللہ یہ مسجدوں کو معاف نہیں کر رہے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ یہ بڑے بڑے مگر مچھ، یہ ڈائناسور، یہ شارک مچھلیاں ہمیشہ ہمیں کھاتی ہیں، اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اب ان کو ہم اپنے سمندر سے اور خشکی سے اٹھا کے باہر کریں گے اور ان کو وہ کیڑے کھائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بچوں کا جینا محال کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کوئی قسطوں شستوں والی بات ہم نہیں مانیں گے، ابھی پیٹرول پمپ گریں گے، ابھی بجلی مزید مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، آٹا مہنگا ہوگا، دالیں مہنگی ہوگی۔ ارے ظالم کے بچوں، غریب کے گھر پہ کھانے کے لیے آٹا نہیں۔ میرے پاکستانیوں، جس طرح آج ہم روڈوں پہ اور آج ہم گھروں میں رو رہے ہیں، جب تک پاکستان کی بدماشیہ کے خلاف آپ ان کو روڈوں پہ نہیں رلائیں گے تب تک یہ نظام سیدھا نہیں ہوگا۔ ہمارا کوئی سیاسی جھنڈا نہیں، ہم بالکل عوامی حقوق کے لیے لڑیں گے۔ نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے، صرف عوام کی سپورٹ چاہیے۔ کب نکلو گے؟ نکل کر خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ السلام علیکم ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستانی قوم اس وقت روڈوں پہ ہے اور اپنے حق کے لیے بجلی کے ظالمانہ بلوں کے خلاف، گیس کے بلوں کے خلاف، پانی کے بلوں کے خلاف، مہنگائی کے خلاف میدان عمل میں نکلی ہوئی ہے، ہمیں اس تحریک کو آگے جاری رکھنا ہے کہ جب تک ہم اپنی منزل نہیں پا لیتے۔ میں اس میں یہ اپیل ضرور کروں گا کہ ہم نے یہ ریاست پاکستان ہماری ہے، ہم نے اپنی ریاست کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے عوامی حقوق بھی لینے ہیں، لہٰذا کسی بھی سطح پہ ہم نے اپنی بلڈنگوں کو، اپنے اداروں کی بلڈنگوں کو اور کسی بھی چیز کو نقصان نہیں دینا۔ ہم نے پرامن احتجاج کے ذریعے پاکستانی قوم کو مبارک ہو، اور اس موقع پر میں ہزارہ بھر کے اور ایبٹ آباد کے نوجوانوں کو بھی مبارکباد دوں گا اور ہر مکتبہ فکر کو مبارکباد دوں گا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکل آئے ہیں، اور کہ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس پرامن احتجاج کے ذریعے انشاءاللہ تعالی 75 سالہ اس قبضہ گروپ کے خلاف یہ جدوجہد شروع کی ہے۔ ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں، ہمارا کوئی سیاسی جھنڈا نہیں، ہم بالکل عوامی حقوق کے لیے لڑیں گے۔ اور میں نے تو یہ نعرہ ایجاد کر دیا ہے کہ نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے، صرف عوام کی سپورٹ چاہیے، کیونکہ ووٹوں اور نوٹوں والوں نے 75 سالوں میں ہمیں کچھ نہیں دیا۔ خواہ جس پارٹی بھی کی حکومت آئی، وہ جمہوریت کے نام پہ آئی، وہ امریت کے نام پہ آئی، وہ اسلام کے نام پہ آئی، ہمارے حقوق کا تحفظ کسی نے نہیں کیا۔ لہٰذا ہم نے اپنی اس تحریک کو آگے جاری رکھنا ہے اور اس وقت تک جاری رکھنا ہے کہ جب تک ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے اندر یہ بڑے بڑے مگر مچھ، یہ ڈائناسور، یہ شارک مچھلیاں ہمیشہ ہمیں کھاتی ہیں، مگر اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اب ان کو ہم اپنے سمندر سے اور خشکی سے اٹھا کے باہر کریں گے۔ وہ وقت آئے گا کہ جب ان کو ہم باہر اٹھا کے پھینکیں گے تو جس طرح چونٹیاں چھوٹے چھوٹے کیڑے کھاتی ہیں، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ ہم چونٹیوں کی طرح اتحاد کر کے ان کو باہر لائیں گے اور ان کو وہ کیڑے کھائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بچوں کا جینا محال کیا ہوا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا پلان سنا ہے قسطوں میں بل کرنے کا، یہ بات ہم نہیں مانیں گے، کوئی قسطوں شستوں والی بات ہم نہیں مانیں گے۔ اس کا مقصد ہے پھر بھی بوجھ ہم پہ ہوگا، ہم یہ بوجھ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی لولی پاک قبول کریں گے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں سب سے بڑی طاقتور چیز اس ملک کی عدلیہ ہوتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ اور اپنے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اور باقی ججوں کے مراد ختم کریں، مفت
बिजली लेना खत्म करें, गैस लेना खत्म करें, प्रोटोकॉल खत्म करें, मुफ्त पेट्रोल खत्म करें। आप पहला स्टेप उठाएंगे तो फिर आपको इंसाफ करने में भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे भाइयों, इन डायनासोरों को, इन मगरमच्छों को और इन शार्क मछलियों को जब तक इनके मुंह में कूड़े डाल के इनको जिस तरह कानून के मुताबिक सजा होती है, जब तक हम सजा नहीं देंगे हमें अपने हकूक नहीं मिलेंगे। और मेरे पाकिस्तानियों, एक बात याद रखना, खुदा के लिए अवामी मुजाहिरों में किसी भी साबका ख्वाह किसी भी जमात से है जो इक्तिदार में रहा, जो कौमी असम्बली में रहा, जो सेनेट में रहा, जो सूबाई असम्बली में रहा, उसको अपने इन मुजाहिरों में ना आने देना। ये मक्खियां हैं, जहां पे ये गुड़ देखती हैं वहां पे बैठ जाती हैं, ये आपकी तहरीक को खराब करेंगी। और मैं ये भी बताता चलूं अपने मुल्क के उन लोगों को कि जो इक्तिदार की बंदर बांट करते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि पीपीआई पार्टी का मकसद ये है कि पाकिस्तान पावर इंडस्ट्री, कि अगर आपने हमारे साथ किसी जीरो को हीरो बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये फन आपके पास है कि आप जीरो को हीरो बनाते हैं और हीरो को जीरो, मगर हम इस निजाम के खिलाफ ये साजिश होगी। मुझे पता है कि ये महंगाई का जिन हमारे ऊपर से आप खत्म नहीं करेंगे, एक नया ट्रक हमारे सामने ला देंगे, एक नया लॉलीपॉप ला देंगे, मगर ये कौम अब इसको तस्लीम नहीं करेगी। अब ये तहरीक अवाम की तहरीक है, ये तहरीक बलजाती नुमाइंदों की तहरीक है, सोशल वर्कर की तहरीक है, पिसे हुए महरूम तबकात की तहरीक है, पिसे हुए मुलाजमीन की तहरीक है, पिसे हुए हर इंसान की तहरीक है। ये किसी सियासी जमात की नहीं, ये किसी मसलक की नहीं, ये किसी मजहब की नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की तारीख है और पाकिस्तान की अवाम की तारीख है। इंशाअल्लाह हम अपने पाकिस्तान की अवाम के हकूक भी हासिल करेंगे और हमारी रियासत मां पाकिस्तान पे जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, हम उनको भी इंशाअल्लाह आखिरी दम तक लड़के उनको शिकस्त फाश देंगे और अवामी राज कायम करेंगे। वज़ीर आज़म साहब, आप कहते हैं कि मैं किस तरह इनको सस्पाई करूं। वज़ीर आज़म साहब, मैं आपको कुलिया देता हूं, दुनिया के किसी मुल्क में कोई सरकारी मुलाजिम अरबोपति या करोड़ोपति नहीं होता। ये सिर्फ पाकिस्तान, वाहिद पाकिस्तान मुल्क है कि हर इदारे के जो ग्रेट ऑफिसर हैं ऊपर, वो अरबोपति हैं, करोड़ोपति हैं और उनकी औलादे भी करोड़ोपति हैं। इसी तरह सियासतदानों की औलादे भी करोड़ोपति हैं। मजहबी रहनुमा जो पार्लियामेंट में जाते हैं उनके भी करोड़ोपति हैं। इसका सिंपल हल है कि आप मुल्क से लूटी हुई जो दौलत है उसको वापस लाएं, इनके एहसासों को जब्त करें। जो सियासतदान सियासत से पहले जो उसके एहसास थे, अब क्या है, उनको जब्त करें। सरकारी मुलाजमीन, वो बड़े बड़े अफसर, मैं छोटे मुलाजमीन की बात नहीं करता, उन बेचारों के साथ तो हमारी तरह हमसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। उनकी जायदादें चेक करें, उनके एहसास क्या थे, ये सारा कुछ आप जब्त करें और खुद भी अपनी याशियां खत्म करें। आप 2 कमरे के वज़ीर आज़म हाउस में आए, जब आप आ जाएंगे तो पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। जो मुझे नजर नहीं आ रहा कि आप सही होंगे, क्योंकि आप हमें नया लॉलीपॉप देने की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये कौम सही हो जाएगी। IMF के कर्जे मेरे पाकिस्तानियों जब तक नहीं खत्म होते, ये अजाब हम पे नाज़िल रहेगा। अभी पेट्रोल पंप गिरेंगे, अभी बिजली मजीद महंगी होगी, गैस महंगी होगी, आटा महंगा होगा, दालें महंगी होगी। अरे जालिम के बच्चों, गरीब के घर पे खाने के लिए आटा नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह आज हम रोडों पे और आज हम घरों में रो रहे हैं, जब तक पाकिस्तान की एक बदमाशिया के खिलाफ आप इनको रोडों पे नहीं रुलाएंगे, तब तक ये निजाम सीधा नहीं होगा। खुदा के लिए ये आपको पानी के चंद कतरे दे के बहलाने की कोशिश करेंगे, मगर उन कतरों के अंदर भी जहर होगा। वो ऐसा जहर होगा कि फिर हमें सुला देगा। अब आपने सोना नहीं है, आपने जागना है, क्योंकि सोए हुए को जगाना तो आसान होता है, मगर जागता हुआ जो सोया हुआ हो उसे उठाना बड़ा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप उठ चुके हैं। अब ये तहरीक आगे बढ़ेगी और मंतकी इंजाम तक इंशाल्लाह जाएगी और हर सूरत में जाएगी। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि आप, मैंने देखा है कुछ सियासी जमातें जो हैं वो भी अपनी खुड्डों में से सिर निकाल रहे हैं महंगाई के खिलाफ। इनसे सवाल करो, 75 साल से जो हम पे काबज हैं, इनसे सवाल करो कि तुम पहले किधर थे। ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए आएंगे, ये आपकी तहरीक को हाईजैक करेंगे। मेरा
मेरा तजर्बा है ये, मगर इनको तहरीक हाईजैक नहीं करने देनी। मैं ये भी ऐलान करता हूँ, मैं अपने हजारा के अंदर करता हूँ, अपने एबटाबाद के अंदर करता हूँ। मेरे दोस्तों, कोई जरूरत नहीं मुझे भी हर जगह बनाने की, जिसका दिल चाहे बुलाए, जिसका दिल चाहे ना बुलाए, मगर खुदा के लिए, अपने हकूक के लिए छोटी छोटी एक्शन कमेटियां बनाओ, फिर बड़ी एक्शन कमेटी बनाओ, अपने आप में से लीडरशिप सामने लेके आओ, खुद सोशल मीडिया पे सामने आओ, सब अपने हकूक की बात करो, क्योंकि ये इतने जालिम लोग हैं, ये इतने जालिम लोग हैं, ये कहते हैं टैक्स, ओ भाई हम हर टैक्स देते हैं, या अल्लाह ये तो तेरे घर को नहीं छोड़ते, ये तेरी मस्जिद में भी जेल जनरल सेल टैक्स लगाते हैं, ये तेरी मस्जिद में भी महसूल चुंगी लगाते हैं, या अल्लाह ये इतने जालिम हैं कि तेरी मखलूक के साथ तो जुल्म कर रहे हैं, जो तेरी इबादत करने के लिए जाते हैं, तेरे घर को भी नहीं माफ कर दे। या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा, या अल्लाह तू हमारे गुनाह माफ फरमा, इन जालिमों से हमारी जान छुड़ा, या अल्लाह तू इनके ऊपर अजाब नाज़िल कर, या अल्लाह तू इनके ऊपर अजाब नाज़िल कर। ए अल्लाह तेरी मखलूक गलत है, हम गलत थे, हम गलत हैं, या अल्लाह तू गफूर रहीम है। ये तेरे घर के साथ भी ये ज्यादती कर रहे हैं, ये जुल्म की इंतहा है कि इनकी बिजली मुफ्त, इनका गैस मुफ्त, इनकी पानी मुफ्त, इनकी हर चीज मुफ्त। या अल्लाह तेरी मखलूक को भी मुफ्त नहीं दे रहे और तेरे घर को भी मुफ्त नहीं दे रहे। या अल्लाह ये मस्जिदों को माफ नहीं कर रहे। या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। और आखिर में मैं कहूंगा अपने उलमाए कराम से, मशाइख अज़ान से कि कब निकलोगे, निकल कर खानगाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। अरे मेरे बुजुर्गों, मेरे उलमा, मेरे मुशाइख, कौम मर रही है, कौम गुर्बत की चक्की में पिस गई है। खुदा के लिए अपनी अपनी मस्जिदों में काफिले लेके बाहर निकले, अपनी अपनी गद्दियों से पीराने कराम बाहर निकल आए। अगर नहीं निकलेंगे तो ये मखलूक कल आपका भी गिरबान पकड़ेगी, क्योंकि आप दीन के रहबर हैं। हमें यकीन है कि आप हमारी नुमाइंदगी करेंगे, हमें लीड करेंगे और इस अजाब से हमारी जान छुड़ाएंगे। मैं इसलिए अपील करता हूं कि खुदा के लिए बाहर निकल आए, खुदा के लिए उलमाए कराम और मशाइख कुराम आप भी बाहर निकलें। हर मकतबा फिक्र बाहर निकल आया है। मैं अपने वकला से गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए हमें फिर धोखा ये न दे दे। आप कानून को समझते हैं, आप हमारी हिमायत में बाहर निकल आए, ताजर निकल आए हैं, हर मकतबा फिक्र निकल आया है। मैं अपने टीचर हजरात से गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए आप बाहर निकलें। आप तो कौम के मेहमान हैं, ताकि इस जुल्म का मुकाबला जो है वो हम कर सकें। और इंशाअल्लाह ये मुकाबला हम करेंगे और हर सूरत में करेंगे, ख्वाह इसमें हमें मौत भी आ जाए, क्योंकि कम से कम अल्लाह और उसकी रसूल की बारगाह में हमारा ये चीज शायद अल्लाह कबूल कर ले कि हमने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मेरी ये अपील है, खुदा के लिए इस जुल्म को बंद किया जाए और लोगों अंदर न जाना, घरों में वापस न जाना। और मैं एहतजाज करने वालों से स्पेशल दरख्वास्त है, खुदा के लिए कोई रोड बड़े बड़े जब तक इज्तिमाई काल ना हो ना ब्लॉक करना। गरीब लोग पहले ही पिस चुके हैं, जो छोटा मोटा काम है उनको चलने दे। दिहाड़ीदार और मजदूर का काम तो नहीं चल रहा, कारोबारी का काम नहीं चल रहा, हर सतह पे तबाही है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि पुरअमन एहतजाज करें, ये तहरीक आगे बढ़ेगी और उस वक्त तक चलती रहेगी। इस तहरीक में लोग आते जाते रहेंगे, मगर एक याद रखें, जब पानी चलता है तो उसमें शापर भी आते हैं, गंदगी भी आती है, सारा कुछ आता है, मगर वो पानी चलता रहे तो सारा कुछ साइड पे हो जाता है। लिहाजा ये सियासी मुफाद परस्तों से भी आपने होशियार रहना है और ब्यूरोक्रेसी की चालों से भी होशियार रहना है। जब तक आप अपने हकूक हासिल नहीं कर सके थे, जब तक अपनी रियासत मां को नहीं बचा लेते, तब तक आपने पीछे नहीं जाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।